Welcome to one and all. We started with chapter C++ and we completed number of topics. And yes, friends, I taught you according to the board pattern, the way it is asked in board, the content which you can deliver in your board paper. Okay, so this is the complete package which you can refer for your board. So if you are facing any kind of doubt, please mention in comment box or through mail. I am here to solve your problems. Okay, we completed number of topics and soon we will complete this chapter also. For today's class, we will learn file and stream. Okay, what is the meaning of file and stream? Why it belongs to C++? Let's see. Files and stream. A stream is a general name given to the flow of data. Okay, अगर हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, किस पैटर्न में फ्लो हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग, अगर हम कुछ a प्लस बी वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे बताती हूँ c इक्वल टू a प्लस बी. ओके, इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, ये प्रोग्राम है. सो व्हाट इज द फ्लो, इसका स्ट्रीम क्या है, कैसे डेटा मिल रहा है, कैसे आपको फाइनल स्क्रीन पे ये आउटपुट प्रिंट होता है. ओके, सो दिस बिलोंग्स टू फाइल्स एंड स्ट्रीम. इंटरनल वर्किंग उसका कैसे है, प्रोसीजर क्या हो रहा है. डिफरेंट स्ट्रीम आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा फ्लो. तो जितने भी स्ट्रीम्स अभी आप पढ़ोगे उसका रिप्रेजेंटेशन is different for different data. Okay, each stream is associated with a particular class. जो भी stream है that belongs to a particular class and containing member function and definition for dealing with a particular flow of data. तो first of all जो भी class है सब में क्या है, you are having stream from a particular class. उसमें जो भी member function है और definitions है उसका हर एक का एक खुद का flow of data है. जैसे एक pattern है कि हमारा डेटा कैसे पहुंचाना है. ओके, कहाँ पे पहुंचाना है, कैसे लेके जाना है, उसका खुद का एक फ्लो है. ओके, सो हर एक क्लास के नंबर ऑफ स्ट्रीम है. स्ट्रीम में यू आर हैविंग मेंबर फंक्शन एंड डेफिनेशन और उसका हर एक का खुद का एक मेथड है, वर्किंग कैसे होगा उसका. ओके, सो फाइल्स एंड स्ट्रीम फॉर दिस टॉपिक यू कैन गेट question in board for 3 or 4 mark. Okay, so most probably it comes with option only. So if you want to skip some of the topics from this files and stream, you can do, but definitely learn this much thing which I am providing in my video. So example is extraction operator. The meaning is ये जो symbol हम use करते हैं with C in is a member of iStream class. I means input. वो हमने किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये C in के लिए. ओके, सो दिस बिलोंग्स टू iStream class. Same way insertion operator which we are using with cout is member of oStream class, that is output stream class. Both of these classes are derived from iOS class, that is input output stream class से कौन सा है क्लास मिला हुआ है हमें, iStream and oStream. ओके, input and output stream, that is iOS. Input output system of C++ handles file operation which are very similar to console input output operation. What it means, ये जो हम IO stream पढ़ रहे हैं, IO stream का जो हम डिटेल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, IO stream यहाँ पे क्या लिखा है, it is same as conio.h. conio means console input output, console input output. Okay, so ये बताया it is very much similar to console input output. This we are using for C programming and this is for C++. तो उसने बोला इसमें काफी similarity है. Okay, it uses file stream as an interface between program and files. Okay, जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसका जो भी फाइल बना है, so फाइल स्ट्रीम, इट यूजेस फाइल स्ट्रीम एज एन इंटरफेस. तो फाइल स्ट्रीम यहाँ पे क्या है, इंटरफेस है जो
दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ कहाँ पे, बिटवीन प्रोग्राम एंड फाइल्स. The stream that supplies data to the program is known as input stream. Like if you want data, that is variable a and b, so the stream which supply you this data, जो stream है जो ये काम कर रही है ये data supply करने का, that stream is known as input stream. The stream that receives data from the from the program is known as output stream. ओके जो स्ट्रीम है जो डेटा प्रोग्राम में दे रहा है दैट इज नोन एज आउटपुट स्ट्रीम. ओके मीन्स व्हाट, ये a प्लस बी है, ये आपको डेटा चाहिए, पहले वेरिएबल चाहिए, सो दिस यू विल गेट फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम. एंड द स्ट्रीम दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम दैट इज सी. सपोज हमने किया प्रोग्राम c इक्वल टू a प्लस बी, सो a प्लस बी विल बी गिवन बाय इनपुट स्ट्रीम एंड जो फाइनल c मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इट इज बाय आउटपुट स्ट्रीम. ओके नेक्स्ट फाइल पॉइंटर. अब ये पहला मैंने ये टॉपिक लिया है फाइल पॉइंटर. इट मे कम फॉर 3 मार्क, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल पॉइंटर. सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 पॉइंट्स, 5 to 6 points you have to give. Sometimes it comes 3 points for 3 marks also. Okay, so give valid points. Each file has 2 associated pointers known as file pointers. तो हर एक फाइल जो है, ये फाइल्स एंड स्ट्रीम में जो भी फाइल्स होगी प्रोग्राम की, हर एक के पास 2 पॉइंटर होते हैं. ओके दोज पॉइंटर कंबाइन दोज पॉइंटर्स आर नोन एज फाइल पॉइंटर्स. वन इज कॉल्ड एज इनपुट पॉइंटर एंड अदर इज कॉल्ड एज आउटपुट पॉइंटर. ओके ये जो फाइल पॉइंटर है कंबाइन में बोलते हैं, उसका एक टाइप है इनपुट पॉइंटर एंड सेकेंड वन इज output pointer. Okay, these pointers are used to move through the files while reading or writing. ये pointers का use कब होता है, जब हम read और write करने के लिए फाइल को read कर रहे हैं और writing, okay, for final output. This is reading means input, writing means final output. Okay, read write करने के लिए हम वो pointers को use करते हैं. So this is known as file pointer. Input pointer is used for reading and output pointer is used for writing. Input pointer means जो input data आएगा, that means it is used for reading and output pointer is used for writing. Okay, this file pointer is very simple, so keep in mind कि आप जो भी फाइल में मूवमेंट कर रहे हो, read write और प्रोसीजर जो भी कर रहे हो, this is belongs to file pointer. वो फाइल पॉइंटर के थ्रू हो रहा है. नेक्स्ट फाइल मोड. अभी वो पॉइंटर कैसे मूव होगा, कहाँ शिफ्ट करना है, ओके तो उसके लिए भी मोड है. So this is the syntax. IOS means input output stream. Okay, so input output stream में ये जो आप use कर रहे हो, okay, so this is used by using this SRO, scope resolution operator. तो इसका मीनिंग क्या है, जस्ट अगर पेपर में आता है, if it comes it will come for 3 mark again, कि explain file mode in file and stream. Okay, or stream in C++, whatever. But if the word, you are getting a word that is file mode, so you have to give any 6 mode. Okay, whatever you feel comfortable, you can give 6 mode. So IOS SRO app. So what is the meaning? Append output to the end of file. बस इसमें क्या होगा, just keep in mind कि जो भी output होगा उसको कहाँ append करना है, to the end of file. Next is IOS SRO ATE, moves control to the end of file opening. ये कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट करेगा, to the end of file opening. So जैसे जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे फाइल की, तो यहाँ से हमें वो पैरामीटर यूज करना है. ओके तो उसका मीनिंग सेम वे में इंटरप्रेट करेगा कंपाइलर. IOS SRO बाइनरी मीन्स इट इज यूज्ड फॉर बाइनरी फाइल्स. अगर आपको फाइल फॉर्मेट बाइनरी चाहिए, बाइनरी में डेटा चाहिए, सो यू हैव टू मेंशन हियर बाइनरी. IOS SRO इन, ओपन फाइल फॉर रीडिंग. इन मीन्स व्हाट, डेटा आ रहा है. ओके सो दिस इज यूज्ड फॉर रीडिंग ओनली, ओपन फाइल फॉर रीडिंग ओनली. सेम वे अगर ये आप पढ़ रहे हो तो इसके अपोजिट में ये है. IOS SRO out means open file for writing only.
Okay, so these are very simple. iOS SRO no create means open fails if the file does not exist. अगर कोई फाइल सर्च हो रहा है तो वो क्या बताएगा, फेल. ओके, तो उसके लिए क्या ये वाला फंक्शन यूज होगा, ये पैरामीटर यूज होगा. iOS SRO no replace means open fails if file already exist. फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है means you are using this parameter. iOS SRO trunk means delete content of file if it exists. अगर आपको कुछ कंटेंट डिलीट करना है so we are using this parameter. Okay, so these are very simple. Keep at least 6 file mode in your mind. Okay, so if it comes it will come for 3 mark, but it is really कि ये बहुत रेयर चांस है. नेक्स्ट फाइल स्ट्रीम, बस मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया बिकॉज वी आर यूजिंग समवेयर इन द थ्योरी, इन द नेक्स्ट थ्योरी. ओके, iOS means input output stream dot h file. Okay, and f stream means file stream dot h. iOS से आपको क्या क्या मिल रहे हैं, क्लास i stream, stream buffer and o stream. i stream and o stream combinedly give you IO stream. Clear? And stream buffer will give you file buffer. I stream is giving you if stream class, IO stream is giving you file stream, and O stream is giving you off stream. So this is file stream base. So these are your class. जो भी आप ये header file में use कर रहे हो ये class है. Okay, so ये सब फाइल मैनेजमेंट में कैसे यूज करना है, ये जो फाइल स्ट्रीम है इसमें कैसे यूज होगा, यू विल सी कि हर एक का फंक्शन क्या क्या है. आपको क्या पढ़ना है स्पेशली फॉर योर 12th, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज क्लासेस. ओके, सिलेक्टेड क्लास मोस्टली जो पेपर में आते हैं वो आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम ही होता है. ओके, सो ट्राई टू लर्न द फंक्शन ऑफ दिस क्लास. ये जितने भी आपको क्लास यहाँ पे दिए हैं बस इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बिलोंग करता है, कहाँ से, ये बस आपको पढ़ना है. ओके, फर्स्ट कीप इन माइंड दैट व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर योर 12th. नाउ वी विल सी फाइल स्ट्रीम क्लासेस. इफ स्ट्रीम, it provides input operation according to the name. It will provide input operation. This file stream class is used to read a stream as it is. ये क्या है, input operation के लिए, तो ये क्या करेगा, read करेगा of object from a file. Okay, it will read, it is used to read a stream of object. number of object को वो read करेगा कहाँ से, from file. This class is used for file handling method. जो भी फाइल आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, एंड करना है, सो फाइल हैंडलिंग मेथड के लिए ये क्लास यूज होता है. इट कंटेन्स ओपन फंक्शन विद डिफॉल्ट इनपुट मोड. यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा विद डिफॉल्ट इनपुट मोड में. कौन सा फंक्शन है वो, ओपन फंक्शन है. इट इनहेरिट्स गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, रीड फंक्शन, seek g and tell g फंक्शन फ्रॉम आई स्ट्रीम. यू कैन सी इफ स्ट्रीम कहाँ से मिला है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे इफ स्ट्रीम कहाँ से आया है. इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम आई स्ट्रीम विच इज कनेक्टेड टू iOS. सो उसने क्या बोला है यहाँ पे कि ये गेट फंक्शन, गेट लाइन, रीड, सीक जी, टेल जी, ये फंक्शंस कहाँ से आया है, आई स्ट्रीम से. ओके, सो इसमें क्या है, इट इनहेरिट्स दीज मैनी फंक्शंस फ्रॉम आई स्ट्रीम. सो कीप इन माइंड ये जो सारे फंक्शन है ये कहाँ से आए हैं, आई स्ट्रीम से आए हैं. एंड ओपन फंक्शन इज अ डिफॉल्ट वन फॉर इनपुट मोड. ओके, नेक्स्ट अपोजिट ऑफ दिस, ऑफ स्ट्रीम. इट प्रोवाइड्स फॉर आउटपुट ऑपरेशंस. दिस फाइल स्ट्रीम क्लास इज यूज टू राइट अ स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फाइल. इसमें क्या होगा, ऑफ स्ट्रीम है, इफ स्ट्रीम में क्या था, रीड करने के लिए यूज हो रहा था, दैट इज इनपुट. यहाँ पे आउटपुट है मीन्स राइट करने के लिए यूज होगा. दिस क्लास इज यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग मेथड. सेम, इट कंटेन्स ओपन फंक्शन विथ डिफॉल्ट आउटपुट मोड. यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन फंक्शन जो किस लिए है, इट इज विथ डिफॉल्ट आउटपुट मोड. It inherits put, write, seek p and tell p.
functions from of stream. As you can see, sorry, o stream, this is only o stream. Okay, so you can see o stream से क्या मिला है आपको, ऑफ स्ट्रीम. सो ऑफ स्ट्रीम जो फंक्शंस ओ स्ट्रीम के हैं सारे इनहेरिट कर रहे हैं. सो the functions put, write, seek p and tell p is coming from o stream class. Clear? Next, f stream class provide supports for simultaneous input output. अभी input stream में क्या था, input के लिए, and output में output stream के लिए, but f stream में दोनों के लिए, input and output both. Keep in mind f stream में दोनों के लिए, it is file stream, ये इसमें दोनों के लिए है. इट कंटेन्स ओपन मेथड. तीनों में कौन सा मेथड कॉमन है, ओपन मेथड. ओके, इनहेरिट्स ऑल द फंक्शंस फ्रॉम आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम थ्रू क्लास iOS. एज पर जो डायग्राम में लिंक है बस वही आपको यहाँ पे लिखना है. इट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज फाइल बफ, दैट इज फाइल बफर. ओके, इट्स पर्पज इज टू सेट द फाइल बफर टू रीड एंड राइट. जो बफर करके रखेगा, पहले से डेटा रीड कर रहा है वो, या तो राइट करने के लिए पहले से सोच के रखा है. जैसे रीड करना मीन्स इसमें पता है, फाइल बफर को पता है कि अभी कौन सा डेटा रीड करने के लिए पूछने वाले हैं, तो ये इसने पहले से रीड करके रखा है. राइट मीन्स कौन सा डेटा उसको प्रिंट करना है, तो ये क्या करता है, इट सेट द फाइल बफर टू रीड एंड राइट, पहले से स्टोर कर रहा है वो. इट कंटेन्स ओपन एंड क्लोज एज द मेंबर्स. ओके, इसके मेंबर्स कौन से हैं, ओपन एंड क्लोज फंक्शन. इट इनहेरिट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ क्लास स्ट्रीम बफर थ्रू क्लास iOS. तो जैसे लिंक है कि फाइल बफर कहाँ से आया है, स्ट्रीम बफर से, और वो स्ट्रीम कहाँ से लिंक है, iOS से. ओके, सो स्ट्रीम बफर का जो भी फीचर्स है वो कहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, वो फाइल बफर में हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज एफ स्ट्रीम बेस. फाइल स्ट्रीम बेस, इट प्रोवाइड्स ऑपरेशन कॉमन टू द फाइल स्ट्रीम. मतलब ये सेम एज फाइल स्ट्रीम है. सर्व्स एज अ बेस फॉर एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम. ये क्या करेगा, तीनों के लिए बेस है. कौन, किस किस चीज के लिए, एफ स्ट्रीम क्लास, ऑफ स्ट्रीम क्लास एंड इफ स्ट्रीम क्लास. एंड इट कंटेन्स ओपन एंड क्लोज मेथड. ओके, सो कीप द थ्योरी इन प्रॉपर मैनर. कैसे कौन सा क्लास लिंक है. ओके, एफ स्ट्रीम बेस किससे किससे लिंक है, एफ स्ट्रीम क्लास, ऑफ स्ट्रीम क्लास एंड इफ स्ट्रीम क्लास से, तीनों से लिंक है. तो आपको बस वही एक मेथड, एक पैटर्न में आपको थ्योरी लिखना है. ओके, नेक्स्ट, एंड नाउ समटाइम्स इन बोर्ड इट केम दैट मेंशन द फंक्शन ऑफ, mention the purpose of these many functions. So it came for 4 mark. Okay, and you are having seek g, tell g, seek p, tell p, get, put, read, write, such kind of functions. तो आपको क्या बताना है कि ये सारे functions का फाइल हैंडलिंग में क्या यूज है, why we are using, बस आपको ये लिखना है. Okay, so I am giving you theory, you can write this theory in your for your board. Okay, so first one is seek g. अभी अभी हमने पढ़ा था कि seek g कहाँ से आता है, it comes from I stream, और कहाँ पे आता है, if stream में आता है. Okay, so this deals with the input file stream. This function is used to move the file pointer forward with given number of byte. Seek g, first of all, if you want to mention, you can mention that it comes from iStream class. Okay, ये function कहाँ का है, iStream class का function है ये. इसका यूज क्या है, it is used to move the file pointer. अभी हमने पढ़ा था फाइल पॉइंटर हमने पढ़ा है, तो फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज करते हैं, फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम ये seek g फंक्शन यूज करते हैं. और ये मूव किस में रहेगा, इट विल बी इन बाइट्स ओनली. ओके, तो उसका सिंटैक्स क्या है, seek g unsigned int. ओके, ये सिंटैक्स है. एग्जाम्पल इफ स्ट्रीम, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इफ स्ट्रीम से. ओके, सो इफ स्ट्रीम, ये इनपुट फाइल में इफ स्ट्रीम क्लास है, उसमें एक इनपुट फाइल, कौन सी फाइल है, xyz डॉट दैट फाइल. ओके, तो इफ स्ट्रीम क्लास में ये जो इनपुट फाइल है xyz डॉट दैट, इसको कितना बाइट
स्पेस फॉरवर्ड करना है, कितना बाइट है वो 10 बाइट। ओके, सो इनपुट फाइल डॉट सिक्स जी का मीनिंग क्या है, फाइल पॉइंटर फॉरवर्ड, कितना फॉरवर्ड करना है 10 बाइट्स। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। ये क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को फॉरवर्ड करने के लिए यूज करेगा, और जितना फॉरवर्ड होता है इट विल बी इन नंबर ऑफ बाइट्स ओनली, कीप इन माइंड। नेक्स्ट सिक पी, अभी ये वेरी सिंपल, सिक जी कहाँ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू इफ स्ट्रीम एंड सिक पी बिलोंग्स टू ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल। ओके, so this function is used to reposition file pointer to a given number of byte। अगर फिर से reposition करना है, फाइनल आउटपुट मीन्स आपको वो जो भी इनपुट में होगा तो उसको फिर से रिपोजिशन करके बताना है कि ये आउटपुट में कहाँ होगा। इनपुट में तो हो गया फाइनल, अब आउटपुट में वो कहाँ होगा मीन्स फाइल पॉइंटर क्या कर रहा है, फिर से रिपोजिशनिंग कर रहा है। सो दिस इज डन बाय यूजिंग सिक-पी मेथड। दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ आउटपुट पॉइंटर, वेरी क्लियर, क्योंकि ये आउटपुट फाइल से बिलोंग करता है। सो आउटपुट पॉइंटर, फाइनल आउटपुट में जो हमारा पॉइंटर वर्क कर रहा है उसको फिर से रिपोजिशन करने के लिए वी आर यूजिंग दिस फंक्शन सिक-पी एंड इट बिलोंग्स टू ऑफ स्ट्रीम। ओके, सिंटैक्स विल बी सेम, सिक-पी अनसाइंड इंट, और इसमें भी वैसे ही बताना है आपको दैट, सॉरी दिस विल बी आउट। ओके, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम मीन्स आउटपुट फाइल स्ट्रीम में आउटपुट फाइल है वो एक कौन सी फाइल है, xyz डॉट दैट फाइल। आउटपुट फाइल को डॉट सिक-पी फंक्शन से फॉलो करना है, फॉलो करना मीन्स फंक्शन कॉल, तो क्या करेगा वो, रिपोजिशन द फाइल पॉइंटर बाय 10 बाइट्स। ओके, रिपोजिशन दिस फाइल पॉइंटर, कौन सा फाइल, आउटपुट डॉट एफ में जो फाइल डिक्लेयर है दैट इज xyz डॉट दैट फाइल, उस फाइल को आपको 10 बाइट से रिपोजिशन करना है। नेक्स्ट टेल जी, जहां पे जी आएगा जस्ट कीप इन माइंड इट कम्स फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। ओके, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न करंट फाइल पॉइंटर पोजिशन। ये क्या करेगा, ये क्या बता रहा है कि आपका करंट फाइल पॉइंटर कहाँ है वो बताएगा यूजिंग दिस टेल जी फंक्शन। ओके, तो आपका पॉइंटर कहाँ पे है। दिस फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ इनपुट फाइल स्ट्रीम, वेरी सिंपल, जहां जी आएगा कीप इन माइंड इट इज विथ इनपुट फाइल स्ट्रीम। ओके, इफ स्ट्रीम का कौन सा है ये फंक्शन, इनपुट फाइल। ओके, इनपुट फाइल डॉट ओपन, इनपुट ये जो फाइल है कौन सी फाइल, xyz डॉट दैट फाइल। ओके, इसको ओपन करना है, ओपन फंक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, वी आर टेकिंग अ वेरिएबल n, उसके अंदर वी आर स्टोरिंग कि हमारा रिटर्निंग पॉइंटर कहाँ पे है, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ बाइट ओनली, तो वो कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा, इनपुट फाइल, कौन सा फाइल ओपन हुआ है xyz। ओके, टेल जी फंक्शन अप्लाई करना है मीन्स रिटर्न द करंट फाइल पॉइंटर ऑफ इनपुट फाइल, जो भी फाइल स्टार्ट हुआ है ओपन हुआ है, एंड कीप द वैल्यू इन n। ओके, next lp, this function is used to return current file position pointer, but ये क्या करेगा, फाइनली आउटपुट स्ट्रीम से डील कर रहे हैं, मतलब जैसे हम प्रोसीजर करते हैं c इक्वल टू a प्लस b, तो दिस डील्स विथ इनपुट स्ट्रीम और c क्या है, आउटपुट स्ट्रीम। ओके, सो ये भी क्या करेगा, दिस इज यूज टू रिटर्न द करंट फाइल पॉइंटर बट फॉर आउटपुट स्ट्रीम। तो सेम वे इसका जहां पे आपने इफ लिखा था वहां पे ऑफ लिखना है, इन की जगह आउट लिखना है, आउट फाइल डॉट ओपन, कौन सी फाइल, xyz, बट इसमें फाइल मोड क्या होगा, ios sro append, मीन्स append द आउटपुट फाइल टू द एंड। ओके, बस, और टेक दिस वेरिएबल n, और इसमें ये फाइल जो अपेंड हो रहा है वो उसका फाइल पॉइंटर कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोर करेगा इन दिस n। ओके, इसलिए मैंने ये आपको पहले ही बताया था इसका क्या मीनिंग है, अपेंड द आउटपुट टू द एंड ऑफ फाइल।
तो फाइल पॉइंटर कहाँ पे अभी अपेंड हो रहा है, मतलब कहाँ पे है, वो कैलकुलेट होगा यूजिंग दिस टेल p फंक्शन फॉर आउटपुट फाइल। नेक्स्ट पुट फंक्शन। पुट मीन्स कभी भी क्या होगा, पुट कर रहा है वो स्क्रीन पे, आप वो कैलकुलेट कर रहा है। ओके, सी हाउ दिस फंक्शन इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इनटू फाइल। ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को फाइल में इनपुट कर रहा है। ये फाइल में कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। अगर आप कोई फाइल बना रहे हो उसमें कुछ और डेटा एंटर कर रहे हो तो ये एक एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, स्पेसिफाइड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट पुट कैरेक्टर वेरिएबल, ये सिंटैक्स है उसका। नाउ यू कैन सी ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या है, आउट फाइल डॉट ओपन। ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है आउट एफ डॉट ओपन। ओपन फंक्शन कॉल किया है, उसमें कौन सा फाइल पास किया, XYZ ओपन करना है, एंड देयर इज अ कैरेक्टर C। तो ये जो A है, नया जो सिंगल कैरेक्टर है, वी आर पासिंग इन दिस कैर C एंड आउट एफ डॉट पुट दिस C इन दिस आउट एफ फाइल। जो भी फाइल ओपन है उसमें ये C जो कैरेक्टर, नया कैरेक्टर है, इसको आप इंसर्ट कर दो। ओके, सो दिस इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इनटू स्पेसिफाइड फाइल। Opposite of put function you have get function. This function is used to read a character from the file. ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है। पुट मीन्स प्रिंट करना, गेट मीन्स अभी वो रीड कर रहा है, इनपुट कर रहा है। सो दिस बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ इफ स्ट्रीम। सेम वे जस्ट अगर आपको पुट आ जाएगा तो गेट भी आ जाएगा, जस्ट अपोजिट। ऑफ स्ट्रीम की जगह इफ स्ट्रीम लिखना है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर इज C। इफ स्ट्रीम योर इनपुट फाइल इज, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें फाइल पास किया है XYZ। ओके, तो ये जो फाइल है, क्या क्या चेक करना है आपको, वाइल इनपुट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल। इसका मीनिंग होता है एंड ऑफ फाइल, ये पूरा फाइल रीड कर रहा है। ओके, एंड ऑफ फाइल फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, जब तक वो 0 ना हो जाए, ओके, इनपुट फाइल डॉट गेट C, एक एक कैरेक्टर को, ये जो C है उसको रीड करना है और प्रिंट करना है यहाँ पे। ओके, सो ये जो इनपुट फाइल इज इक्वल टू 0, एंड ऑफ फाइल जब तक 0 ना हो जाए, टिल दैट टाइम ये इनपुट फाइल जो XYZ है उसके कैरेक्टर्स को रीड करना है। इसमें क्या लिखा है, इट इज यूज टू कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, एंड वो प्रिंट करना है। ओके, नेक्स्ट this we completed, right? This function is used with object of stream and it is used to store data into file in binary mode. Simply write means क्या, वो प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है, वो स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। ओके, दिस फंक्शन इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इनटू द फाइल, बट मोड क्या रहेगा उसका, बाइनरी मोड, दैट इज iOS SRO बाइनरी। General user cannot read this file type using this type command. Okay, तो जो common users हैं they can't read this file. ये file handling के लिए हम लोग use करते हैं, so we can't, जो भी users होंगे they can't read this file. Here all the variables of different types are first of all converted into char. You can see this is pointer. So जितने भी variables हैं यहाँ पे ये एक pointer में convert होते हैं first of all. You can see द सिंटैक्स। ये जो राइट के लिए फंक्शन लिखा हुआ है इसमें क्या है, दो पार्टीशन है, एक पॉइंटर है और एक उसका साइज है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज पॉइंटर टू कैरेक्टर, दिस इज पॉइंटर टू कैरेक्टर जो कैलकुलेट होगा, एंड सेकेंड पैरामीटर इज नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर गिवन वेरिएबल। ये साइज ऑफ से हम क्या करते हैं, वेरिएबल का साइज कैलकुलेट करते हैं in bytes. Okay, so second parameter is used to calculate the number of bytes required. Okay, so this is very simple, it is used to store the data in binary mode. Okay, next read method. This function is used to read data in binary mode from file. Okay, this function is associated with if stream object.
and that function, write function, is it belongs to of stream. Data which is stored by using write function can be read by using read function. So क्या होगा, डेटा जो भी स्टोर हुआ है वो कौन से वे से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं यूजिंग राइट फंक्शन. इफ यू वांट टू रीड देन यू हैव टू यूज रीड फंक्शन. This is having two arguments. First is address of variable of any data type. First क्या है, address of variable of any data type, but data is converted into pointer. You can see pointer में convert हो गया है. Okay. Second parameter is size of variable. ठीक है, उस वेरिएबल का, ये जो वेरिएबल यहाँ पे है उसका साइज क्या है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा इन बाइट्स. तो दिस इज द फॉर्म for read and write. If you won't write this form in board also, then also it is valid. You have to give just proper theory. Just keep in mind get and read. Okay, this belongs to input stream, and same way put and write, this belongs to output stream. Seek G, tell G, this belongs to input stream. Seek P, tell P, this belongs to output stream. Okay, so please keep in mind. एंड थेरी इज वेरी सिंपल. अगर आप एक इनपुट के लिए पढ़ लोगे तो सेकेंड आउटपुट के लिए आप थेरी खुद से लिख सकते हो. व्हाट इज द कंपैरिजन यू कैन सी. ओके, सो दिस वाज योर ऑल अबाउट फाइल एंड स्ट्रीम और फाइल हैंडलिंग. नेक्स्ट टॉपिक विल बी पॉइंटर रेफरेंस इन C++. using this topic we will do one board program of swapping two number. Okay, this program is really very important for your practical also, so be with me and be with the link of these videos and complete this theory of file stream. This is very simple file stream, but sometimes it came in board. Okay, it is not कि that ये हमेशा compulsory आता ही है. sometime it comes, but आता है जब भी it came, sorry, but लेकिन जब भी आया है वो it came with option only. So no need to worry if you are not getting theory of file stream. जो किसी स्टूडेंट को theory समझने में प्रॉब्लम होती है, so there is no problem. So if you are covering your whole C++ chapter, then you can skip some of the topic. Okay, so but it is very simple also कि जो आप एक theory पढ़ोगे opposite of stream के लिए just opposite theory है उसमें. So keep in mind, and if you are facing any kind of difficulties, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो मेल के थ्रू आप मुझे बताएं. आई विल हेल्प यू कंफर्म. ओके, सो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक in our next class, that is pointer reference in C++ with a program. Okay, thank you class.